Our next speaker is Mrs. Aarti Agarwal Gupta. Mrs. Aarti Gupta is a commerce graduate. She has done her software engineering and she has got a very unique qualification which is called as Jyotish Dev Ganya. And she is also an animal and a tree activist. So, and she has got a lot of experiences in her society. So we will be discussing with her. Good evening, members of the forum. I'm Aarti Agarwal Gupta, as introduced by Hemant ji. And I am a citizen of this country. And as a man, I would like to give a brief introduction before I share my grievances, the exploitation and the harassment as a citizen, a consumer, a lady I'm facing in this country, in this state, in this city, and in this society. So let me give a brief introduction of how I would like to proceed. Citizen, a very official Indian citizen, and as a layman, I know that my constitution guarantees me fundamental rights. One of them being right freedom, Article 19 to Article 22. Article 19(1) speaks about RTI, right to information. Article 21 says that it is one of the rights supports and is protection of life and personal liberty to the person. The person should not be deprived of that. Thus, we say that Article 21 embodies the constitutional value of supreme importance in a democratic society, which is India. In a democratic society, protect life and liberty, and it has been held to be the heart of the Constitution. That is our Constitution, which is the most organic and provision in the living Constitution, in the foundation of law. I would like to bring forth to the members of the forum that this article, this freedom which I get from this article, confers on and allows me to be an animal lover, a social activist, pursue my mode of green mission, live in a clean, dignified environment, have the transparency of where my money is going, be it the government or to the society, apart from other rights, and to have a safe living. Ye broad perspective. All these have been grossly violated from time and again, right from 1999 till date. And I would like to unfold the sequence and share even this, how I am dealing with it till date, single hand, to proceed with. I will my animal activism for which I paid the price. Then I will speak about how my tree activism made pay the price in the society, and I was subjugated to a lot of things. Then how flat transfer was stopped for 11 years because I was an animal activist and I'm a tree activist. This was given in the print media also. Mumbai Mirror covered it. Menka Gandhi supported it. CP Kudal eventually supported it. But managing company क्या है? बनाना रिपब्लिक. बनाना रिपब्लिक किसे कहते हैं? जो संविधान है उसको वो नहीं मानेंगे. वो जो सोसाइटी की दीवारी है वो उसमें अपना कानून बना के अपने हिसाब से अपनी के काम करेंगे. और जब आप इन दीवारी के बाहर जाना चाहेंगे, आपको पता ही किससे काम होता है. डेप्यूटी रजिस्ट्रार के किस तरह से काम होता है, डीडीआर के वहां कैसे होता है, जॉइंट कैसे होता है, बीएमसी में कैसे होता है, पुलिस स्टेशन में कैसे होता है. आई हैव बीन एवरीवेयर. टिल डेट आई एम फाइटिंग. As an animal activist, what happened in 1999 when I moved in this society on rent? I was given clear instructions. Though I was a citizen of India, आप कोई जानना पे हेल्प नहीं करेंगे, आप कोई झाड़ों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने घर में ये नहीं करेंगे, आप अपने घर के बाहर ये नहीं करेंगे, नहीं तो हम आपका लीव लाइसेंस एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे. कि मैंने बोला, but what I applied for membership of Animal Welfare Board of India and PFA, and I got membership. That is irrespective whether I'm an owner or a tenant, I get the right to protect the community animals. That they went on harassing me. Of this flat decided to sell this flat to me because she was also getting harassed previously,
when she had put other people on legal license. So I bought this flat. My prime aim to purchase this flat was to protect the animals, the community animals, trees. After that, series of events followed. One of the event was a cat gave birth to 7 kittens. It was electric room, and all her kittens. When I investigated the matter with the then chairman, Mr. Methu, he said, "मैं तुमको बना के पी गया, कुछ जो करना है करो." मैंने बोला अच्छा ठीक है, मुझे जो करना है. I contacted SPC, the Society to Prevent Cruelty Against Animals. They got the police over there, investigated the matter, they issued the warnings. But कानून नाम की नहीं है. They did not stop there. And they started listening through the other employees of the society, like sweeper, जो हमारी cleaning staff थी. She tried to barge into my house after a year on the pretext of taking water when I was unwell. And when I do barge into my house like that. So the then committee members who were sitting in the office, one of them came up and said, अरे ये तो हिंदू है, ये दलितों की अगेंस्ट है, इसलिए इसको घर में नहीं घुसने दे रही है. So ठीक है, I reported that matter to the police. Again, the trees were cut, not builded. It was a gross violation of Mumbai Urban Tree Protection Act 1970. I objected to that. I said trimming is one thing and molding is another thing. They did not listen to me. I said here is an NG order also, जहाँ आपको deconcretization भी करना है to protect the trees. They did not listen to me. I said आप समझिए how important Indian environment is to the living being. आज हमारे वर्धवा एरिया की जो USP है बंगलोर की, is the greenery. We have 7 gardens over. So this is a basic to have a flat over here. Please understand this. They did not stop that. The matter to the KMC has forwarded the matter to the police station. Police has investigated that matter. I have filed the RTIs, not the reply appropriately, and the vicious circle is on. And the trees are getting uprooted. After that, after a few days, they pushed another community cat from the 4th floor in the night. No was installed in the above floors, so no evidence. When we took the cat to the doctor, they said this cat is pushed to the 4th floor. After some days, an axe was thrown. Why I am highlighting these events of the forest, how I have been made to feel criminal when I am protecting the animals, trees, or stating certain rights, which is my mission. In the meantime, we had to transfer the flat from my mother's name to my name because my mother passed away unexpectedly without nomination. So as per bylaw number 35, I submitted all the documents. Form number 17 was duly filled, note was filled, and everything was submitted. Society did not respond. For 2 years, we went on giving them reminders. But unofficially, they made very clear that the flat transfer तुम्हारे में नहीं करेंगे. Unofficially, they made the use of all funds that they had, and around say they went on playing the matter. My pocket, my money was going, but from their pocket they were having fun because 1.5 members' money was getting utilized, and they were cases and cases against me. Gradually, it went on for years and years and years. Registrar passed an order under section 22 to transfer the matter. This order was passed 3 times, but the managing committee refused to follow that order. He sent an authorized officer to transfer the flat, जो एक हमारे संविधान ये में है और MCS Act में है. वो ट्रांसफर ऑफ फ्लैट को भी उन्होंने चैलेंज किया क्योंकि they had all the money at disposal. So they challenged आराम से, and they filed a counter case that I get hirelings in this society and I am in charge of this flat where I am residing, and I am greasing their palm and I am threatening them. Here I'm trying to highlight how the managing committee is misusing the authority, the power given to them, and also the money जो आप collect करते हैं maintenance. They are using it
to harass one person who does not function according to them. So this also went on. Registrar had to again start the case because they refused to transfer the flat. Finally, the flat got transferred under Section 79. That means that no managing committee transferred it. The police and the registrar's officer came and transferred. The entire procedure took 11 years. And the amount of money that must have gone, it can be calculated. Because मैंने अपनी pocket से pay की, and they can pay from the society account. Not answerable of this thing. They were not made answerable for any of the acts. Once I became the member, I reported this matter to the registrar. I said, I want the accounts of all the legal expenses done with them and the reason to be stated in. I also want the major structural repairs which they're carrying out, all documents for them, all the guarantees that they have, everything. Not a single letter applied till date. Neither the society replies it, nor the registrar issue appropriate actions against them, nor the BMC building and factory department have reported the matter. They thought of taking that, nor the fire department, because the order is not done. So, in short, अगर interactive रखना है तो I'm trying to tell you that at every how the member is being harassed because आप एक unqualified set of members होते हैं managing को इतने powers देते हैं कि वो आपके फ्लैट का भी डिसीजन ट्रांसफर का आपके दूसरे मैटर्स की भी उनके हाथ में वेस्टेड कर दी जाती है इंस्टेड ऑफ मेकिंग आंसरेबल more and more powerful. So this needs to be halted and precisely need this forum's help to give recommendations to the cooperative department of the government to please curb the powers of the managing committee, reduce the tenure. Because अगर वो honorary workers हैं, जैसे वो अपने आप को कहते हैं कि तो सर्विस के लिए आते हैं, तो एक NGO में भी एक प्रेसिडेंट का टेन्योर 1 साल होता है. तो सेम वे सोसाइटी में आप प्लीज 1 साल का टेन्योर रखो ताकि वो लोग अपने ग्रुपिज्म पॉलिटिकल की सोसाइटी को यूज कर रहे हैं टू मैनिपुलेट फैक्ट्स दैट नीड्स टू बी हॉल्टेड राइट अवे बिकॉज हाउ मेनी टाइम्स एंड हाउ मेनी मेंबर्स विल स्टेप आउट ऑफ द बाउंड्री सोसाइटी एंड गो टू हायर अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट एंड एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड वेरी क्लियर I go to registrar's office, number of things that I see over there, it gives me a picture that how are the things functioning. So here I would like to rest my case and I want to invite in from the consumer forum expert or other experts that how can we curb powers of the managing committee, how can the major repairs and the safety of every member be reassured in society. How can swift and prompt actions be taken and how can all the legal authorities make to work to implement laws in the laws. This is my presentation. आरती मैडम आपका जो ऑडियो और वीडियो का शायद वीडियो का तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा लेकिन ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है. काफी मेंबरों ने रिक्वेस्ट किया है कि आपकी ऑडियो से ठीक से उनको आवाज नहीं पहुंच रही है. तो आपका जितना भी हमने सुना आई जस्ट ब्रीफ द मेंबर्स. आप अंधेरी में गीतांजलि सोसाइटी में रहते हैं. वहां पे ओरिजिनली आप लिव इन लाइसेंस पे थे. बाद में वो फ्लैट आपने आपकी मदर इन लॉ करेक्ट मदर के नाम पे खरीदा वो. और मदर के एक्सपायर होने के बाद में वो फ्लैट आपके नाम पे ट्रांसफर के वक्त सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ने आपको खूब परेशान किया. परेशानी का कारण क्या था? 2-3 कारण थे. एक तो आपने सोसाइटी में ये बताया आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं. आप सिंस यू आर एन एनिमल लवर सोसाइटी में जितनी भी बिल्ली थी आप उससे केयर करा करते थे. सोसाइटी को मैनेजिंग कमेटी को पसंद नहीं आया वो चीज. वो हैरास करने लगे. उन्होंने कुछ बिल्लियों को सोसाइटी के इलेक्ट्रिक मीटर रूम में बंद किया. वहां पे वो अजीब हालत में थे और वो मर भी गए.
कुछ और बिल्ली का इंसिडेंस ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई 4th फ्लोर से बिल्ली को नीचे फेंका, आपने मेडिकल असिस्टेंस लिया, आपने मेनका गांधी के ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लिया, आपने उस चीज को पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किया हुआ है, और ये सारे देखते हुए एक्चुअली जब आपके फ्लैट का ट्रांसफर आपके नाम पे होने को आया तो सोसाइटी ने आपको जी भर के परेशान किया. एम आई राइट इन द एसेंस ऑफ द मैटर? Yes, sir, for almost 11 years and till date going on for matters also. Okay. So I will now invite all the participant friends to give in their opinion, comments, questions to Aarti madam so that we all learn from each other. Any participants who wants to ask questions, please? हेमंत जी, देखिए एक्चुअली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली है जो है दे डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द बायलॉज. सेकंड, जितने भी जो इश्यूज जो एस्केलेट होते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द ईगो इश्यू. आप समझे. सेकंड चीज, जहां तक एनिमल का सवाल है, द एनिमल वेलफेयर बोर्ड हैज गिवन बिग गाइडलाइंस to be followed by everybody. Even the High Court and the Supreme Court have given orders that animal lovers के लिए कि animals को आप dog को आप lift से मना नहीं कर सकते हो उनको लेके जाना. But ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई भी डॉग पू करता है तो इट इज देयर ड्यूटी टू पिक इट अप एंड सी दैट द अदर्स आर नॉट पुट एट एनी इनकन्वीनियंस. तो ये सारी चीजें, एक तो आपको सेल्फ रेगुलेशन भी करने की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम एनिमल लवर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की जरूरत है. Yeah, so over here I would like to reply to Afzal. Here I'm talking community animal. That means animals that were around the society premises and they were equally giving birth. So as animal lover, I took care of them, got them neutered, got them vaccinated, and so that they got the birth control program and gradually their population reduced. Now over here I would like to clarify one thing to Afzal ji, that you're talking about constitution. It is a fundamental duty given in clause Article 51A of the Constitution that obliges every citizen to compassion towards 58A Constitution protect improve environment. Part 4A Article 51A fundamental every citizen to protect and improve natural environment including forest. Are every member educated? Prevention of Cruelty Act 1966, no cruelty towards animal. Section 2 subsection 1 says if any person beats, it's overthrown, etc., it is supposed to be treated as cruelty. Indian Penal Code section 428 429 got invoked. These sections invoked by SPC against the Bombay Police Act 1951 section 73 got invoked. How many sections were invoked? Here is the committee is in my society and all the societies is behaving like a lala land. It's lala land जहाँ पे वो अपना कानून चलाते हैं लेकिन कानून वो तैयार नहीं है. That's an issue which I am raising, the grievance on this forum. And अगर हर citizen की responsibility है तो एक लोगों की सोसाइटी में अकेले आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल द कम्युनिटी एनिमल जो पहले से भी थे, उनको अकेले न्यूटर करवा रही हूँ, उनको अकेले में वैक्सीनेट करवा रही हूँ, उनको अकेले में खाना दे रही हूँ. कैसे आप जब इस देश के सारी सुविधाएं उठाना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी करेंगे देश के वास्ते के नाते. आरती जी, आप जो बोल रही हैं आप सही बोल रही हैं, मगर जनरली हमने ये देखा है कि जैसा बिल्डिंग की लॉबीज होती हैं तो वहां पे जब डॉग्स को वो लेते जाते हैं तो वहां पे उनको पू करवाते हैं. तो आई मीन व्हाट आई और ये पर्सनल एनिमल की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कम्युनिटी एनिमल्स की बात कर रही हूँ. बिकॉज आई एम अगेंस्ट कैप्टिविटी. मैं कोई पेट्स अडॉप्ट नहीं करती. आई लाइक टू टेक केयर ऑफ कम्युनिटी एनिमल्स सो दैट दे आर फेड, दे आर न्यूटर्ड, दे आर वैक्सीनेटेड एंड उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाए. That is my criteria, and I have
दैट आप एंट्रेंसेस को ब्लॉक करिए ना, आप उनको गार्डन में दे दीजिए, एक शेल्टर बना दीजिए जहाँ वो रहेंगे। लेकिन वो नहीं सुनना चाहते हैं, वो अपनी मनमानी चलाए जा रहे, एक के बाद एक के बाद एक, और मुझे हैरेस करे जा रहे हैं। अभी मैं आपको 4 दिन पहले का इंसिडेंट बताती हूँ। Because they could not settle the animal matter which they wanted to use against and sign करके letters भेजे against the animals. So they ganged up and they came to me right in front of my house and they tried to invade on my private car. So 10 to 15 people इस तरह से वो harass कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैनेजिंग कमेटी लेडी रिप्रेजेंटेशन किया गया है तो उसका यूज की, अगर वुमेन सॉरी फॉरगेट द पर्सन। नहीं, देखिए ये जो आप बता रही है कि 15 पीपल और 10 पीपल गैंग अप होते हैं, तो ये अक्सर पाया गया हुआ है। बट आई थिंक सो कि दोनों साइड में ईगो को साइड में रख के जो एनिमल, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एनिमल लवर माई सेल्फ, एंड आई फील कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से समझना चाहिए और उसको अंजाम देना चाहिए। एट द सेम टाइम the people around staying in the managing in the entire complex, even they should exercise their responsibility. Exactly. और एक बात बताऊं अभी आपको, जब आप किसी के प्रति सेवा भावना है ना, तो आपकी ईगो वैसे ही डाउन हो जाती है। और आप देखिएगा एनिमल एक्टिविस्ट की सेवा भावना करते 12-1 बजे तक सब सोसाइटी जा के गेम करते हैं, लेकिन उनको हैरेस किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, उनको लाइक अ माइनॉरिटी ट्रीट किया जाता है। Okay, can we involve other participants for other questions also, please? Other comments, other suggestions to Aarti madam? There is a post called Joint Secretary in the bylaws of the society, Joint Secretary and Joint Treasurer. Mr. Kinjal, please repeat your questions and to whom are you addressing? Are you addressing to Aarti madam or to whom are you addressing? No, actually Aarti madam, you can give the answer because I feel you have done so much of study. So it was just a question. Joint Secretary and Joint Treasurer, are these posts allowed in as per bylaws of the society 2014? Under the MCS Act, the office bearers are classified only for 3 people: chairman, secretary, and treasurer. These are the only people who can sign on the balance sheet. That is why they are called office bearers. However, by taking appropriate notice, agenda, resolution in an MC meeting, you can appoint sub posts. Sub post का मतलब है vice president, joint secretary, joint treasurer, सब कमिटीज आप बना सकते हो, जितने भी चाहिए आप सब कमिटीज बना सकते हो. There is no problem. But they will not be classified as office bearers. If at all there is a dispute in the society, any criminal case, any consumer case, any civil case, cooperative case, then these people will have no authority to represent the society. Now, if you see, if there is an election in the society में election हुआ, अब election होने के बाद में आप उसमें कमिटी मेंबर्स चुनते हो, आप मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स चुनते हो, ऐसा नहीं बोल सकते आप कमिटी मेंबर्स चुनते हो. अब कमिटी मेंबर्स चुन लिए, मानो 17 कमिटी मेंबर्स आपने चुन लिए. अब 17 कमिटी मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाई जाएगी. अब वो मीटिंग कौन बुलाता है? मीटिंग बुलाता है रिटर्निंग ऑफिसर, यानी इलेक्शन ऑफिसर, जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार की तरफ से अपॉइंटेड होता है. और अब छोटी सोसाइटियों में आप अपना प्राइवेट रिटर्निंग ऑफिसर भी अपॉइंट कर सकते हो. अब ये कंसेप्ट नया भी निकला है कि रिटर्निंग ऑफिसर का एक पैनल भी बन रहा है. आप उसमें से भी, जैसे ऑडिटर कैसे है स्टैट्यूटरी ऑडिटर पैनल में से, वैसे रिटर्निंग ऑफिसर का भी पैनल बनाने का प्रपोजल है, या शायद बन चुका होगा. अब वो जो 17 मैनेजिंग कमिटी की, अपना 17 कमिटी की जो कमिटी बनाई, इलेक्शन होके आया, आपने चुना उसको, उसमें से उसकी एक मैनेजिंग कमिटी की मीटिंग बुलाने का अधिकार किसको है? फर्स्ट मैनेजिंग कमिटी मीटिंग, वो है रिटर्निंग ऑफिसर. अब रिटर्निंग ऑफिसर जब 17 लोगों को बुलाएगा, मीटिंग करेगा, तो उसमें ये बोलेगा कि आप 17 लोगों में से आपस में एक आदमी को चुनो जिसको चेयरमैन बनाना है. ठीक है, तो आपस में आप अपने आप को नॉमिनेट करोगे. कोई बोलेगा मैं इसको नॉमिनेट करता हूँ, कोई उसको नॉमिनेट करता हूँ. अगर मल्टीपल नॉमिनेशंस हुए तो फिर उसमें आपस में वोटिंग होगा बाय शो ऑफ हैंड, एंड द अथॉरिटी ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर विल बी फाइनल. तो उस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ 3 पोस्ट चुने जाते हैं.
चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। एक बार ये हो गया तो आपका 17 मैनेजिंग कमेटी में से 3 पोस्ट फाइनल हो गए। उसके बाद का जो सब पोस्ट है वो रिटर्निंग ऑफिसर को अधिकार देंगे उसको चूज करने का। ये हो गई मैनेजिंग कमेटी मीटिंग नंबर 1। आप तुरंत अगले दिन, अगले शाम को 4 घंटे बाद एक नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग बुला सकते हैं और उस मैनेजिंग कमेटी में आपस में तय करके आप ज्वाइंट पोस्ट कर सकते हो। ज्वाइंट पोस्ट का आधार और कारण क्या होता है? नॉर्मली सेक्रेटरी 3 महीने के लिए अब्रॉड चला गया, गांव चला गया, बीमार पड़ गया, वगैरह वगैरह। अब चेक पे साइन करना है तो मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में अप्रोप्रिएट अथॉरिटी देके आप उस ज्वाइंट सेक्रेटरी को अधिकार दे सकते हो to function for routine possibilities of the society, but he will not be able to sign on the balance sheet. Okay, so now the answer to your question is कि joint positions are allowed subject to proper and prior notice agenda of a managing committee, और उसमें आप चुनेंगे। सर बोलिए, और कुछ है? सर ये आपने जो बोला कि रिटर्निंग ऑफिसर आता है, वी हैव अ सोसाइटी, और वही हुआ रिटर्निंग ऑफिसर थे। कीवर्ड में येल्लारे करके थे, येल्लारे करके साहब आए थे, उन्होंने अपॉइंटमेंट किया 3 ऑफिस बेरर का, सचिव और ये जो चेयरमैन ट्रेजरर का, सबका तीनों का इन्होंने अपॉइंटमेंट किया। लेकिन मेरी सोसाइटी में वही मीटिंग में पीछे ब्लैंक पेज रखा गया था जिसमें कमिटी ने अभी जब भी ऑब्जेक्शन आया, कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट मैंने चैलेंज करा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया है, वही मीटिंग में जो पीछे पेज खाली था वहां पर उन्होंने एडिशनल एक किया कि so and so person is appointed as joint secretary, so and so person is appointed as joint treasurer, and they will have a right to operate the bank accounts also. यानी सिग्नेटरी राइट उनको दे दिया उसने। सर they can do it but not in the meeting which is chaired under the presiding officer, that means the returning officer। एक बार उसने साइन कर दिया ये 3 के बाद में, उसके बाद में उस मीटिंग में आप एडिशनल पोस्ट अपॉइंट नहीं कर पाओगे, आपको अलग से एमसी मीटिंग 2 बुलाना पड़ेगा। उसमें आप जो मर्जी चाहे करो कानून के दायरे के अंदर, और वो पोस्ट लेजिटिमेट है, देयर इज नथिंग। वो आप उसमें डेलीगेट कर सकते हो अथॉरिटी को कि ज्वाइंट सेक्रेटरी को एनओसी देने का अधिकार है, सब कमेटी कोऑर्डिनेशन करने का अधिकार है, या ज्वाइंट सिग्नेटरी का अधिकार है, वगैरह वगैरह। आई मीन प्रॉपर प्रोसीजर करके आप कर सकते हो उसके अंदर। सर ज्वाइंट सिग्नेटरी नहीं बने, वो प्राइमरी सिग्नेटरी है। आइदर और सर्वाइवर जो होता है, ये आइदर यानी सेक्रेटरी के साथ में ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो ऑब्लिक करके सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी विथ चेयरमैन एंड ट्रेजरर, ऐसा कर दिया है। सो दैट इज 113 अपना जो बायलॉ नंबर 113 में है, उसमें तो सिर्फ सेक्रेटरी विथ ओनली वी कैन साइन, सेक्रेटरी का कंपल्सरी है। तो ऐसा इन्होंने रिजोल्यूशन पास किया, और वो भी बैक डेट में जाके इन्होंने मैनिपुलेशन करके वो उसका भी प्रूफ है। तो इसको कैसे परस्यू करना चाहिए? एंड दे आर नॉट रेडी टू। इंजल जी, ऐसा है कि आज का टॉपिक तो नहीं है ये, फिर भी आई विल आंसर योर क्वेश्चन एंड देन वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक। चेक पे साइन करेगा सिर्फ 3 व्यक्ति, आइदर और सर्वाइवर हिसाब से नहीं होता इसमें। आइदर और सर्वाइवर होता है वो इंडिविजुअल अकाउंट्स पे होता है, ठीक है ना। चेयरमैन मरता नहीं है कभी भी, रिमेम्बर दैट, ठीक है। ए डेजिग्नेशन नेवर डाइज, a company never dies, a firm never dies, it has to be dissolved using proper procedures of law। अभी अगर आपने 3 ऑफिस बेरर को अथॉराइज सिग्नेटरी डेलीगेट किया फॉर बैंकिंग ऑपरेशंस, तो उसमें आप ये लिखोगे कि all 3 have to sign jointly। सेकंड लिखोगे आप either 2 of the 3 can sign, ठीक है। these are the things। Now either 2 of the 3 can sign मतलब हो गया चेयरमैन सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ट्रेजरर, चेयरमैन ट्रेजरर एंड सो। अगर किसी कारणवश आपने ज्वाइंट पोस्ट अपनाया हुआ तो आप उसमें आप ये नहीं कर पाओगे कि सेक्रेटरी की जगह में, चेयरमैन की जगह में ज्वाइंट सेक्रेटरी साइन करेगा। अगर सेक्रेटरी अवेलेबल है तो सेक्रेटरी का सिग्नेचर मैंडेटरी हो गया, ठीक है। और अगर ट्रेजरर अवेलेबल नहीं है तो ज्वाइंट ट्रेजरर साइन कर सकता है। अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो वाइस चेयरमैन साइन कर सकता है। बट इफ यू से कि चेयरमैन की जगह में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन साइन करे, वो नहीं होगा। इट इज डेलीगेटेड अथॉरिटी इन लीव ऑफ चेयरमैन, दिस पर्सन इज डेलीगेटेड अथॉरिटी।
तो इन लिeu ऑफ का मतलब क्या हुआ, ये नहीं है तो ये, अब ये भी है और ये भी है, दोनों नहीं होने वाला है. ओके, वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज बिफोर वी कंक्लूड. सर मैं मनोज नायक बोल रहा हूँ. यस सर. सर हेमंत जी, ये जो सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी का टेन्योर एमसी एक्ट के हिसाब से 5 इयर्स होता है. तो जैसे हमारे सोसाइटी में इलेक्शन दिसंबर 2014 में हुआ था, तो Yes, sir. 5 इयर्स के हिसाब से वो दिसंबर 2019 में खत्म हो जाता है. यस तो सर. आइडियली एमसी को, जो मैं समझता हूँ कि एमसी को रजिस्टर को चिट्ठी लिखनी चाहिए दिसंबर से पहले कि हमारा टर्म खत्म हो रहा है, ये एलिजिबल मेंबर्स है वोटिंग के लिए, और आप रिटर्निंग ऑफिसर भेजिए इलेक्शन के लिए. बट एमसी ने ऐसा नहीं किया है. 2021 मार्च में जो एजीएम हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, अभी एजीएम सजेस्ट करो कि क्या करना चाहिए. और Okay. उन्होंने एक मार्च का कुछ सर्कुलर का ये दिया, एग्जाम्पल दिया कि रजिस्टर ने मार्च में एक सर्कुलर निकाला है कि कोई इलेक्शन अभी नहीं कर सकते हैं. ठीक. आपकी सोसाइटी का जो कार्यकाल है मैनेजिंग कमेटी का, टेन्योर और कार्यकाल खत्म हुआ है नवंबर 2019 में, आपने बताया. ओके सर. करेक्ट है. यस सर. एमसीएस रूल के हिसाब से रूल्स अलग से, इलेक्शन रूल्स अलग से दिया हुआ है. एक्ट अलग है, एमसीएस रूल्स अलग है, और इलेक्शन रूल्स अलग है. इलेक्शन रूल्स के हिसाब से अगर आपका कमेटी का टर्म नवंबर 2019 में खत्म होता है तो -6 करोगे तो कितना होता है? अगस्त 2019. मई 2019 होता है. Yes, ठीक है ना. यस सर. अब मई 2019 में आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार को क्या क्या देना है? एक फॉर्म है उनका E1, E2, E3 और अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ योर बोनाफाइड मेंबर्स, और जी, उसमें डिफॉल्टर कौन कौन है और एलिजिबल वोटर है या नहीं है, उसका लिस्ट देना है. जी सर. अब ये 6 महीने तक आपकी मैनेजिंग कमेटी कंटिन्यू कर सकती है क्योंकि उसका टेन्योर नवंबर 2019 पे है. ठीक है. 2019 नवंबर में सरकार ने ये नोटिफिकेशन नहीं निकाला था उस समय तक जी कि अभी ये कोविड उस समय डिक्लेयर नहीं हुआ था. कोविड हुआ. के कारण आप कंटिन्यू करोगे अप टू 31 मार्च 2021 तक, ये वाला डायरेक्शंस नहीं निकाला हुआ था उस समय, जी सर. है ना. तो उस समय आपके मैनेजिंग कमेटी को छोड़ना चाहिए था और रजिस्ट्रार को ये बोलना चाहिए था कि सर हमारा कार्यकाल पूरा हो गया है, हमारे को नया मैनेजिंग कमेटी अपॉइंट करना, या तो आप अपॉइंट करो या तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करो, या तो हमारे में से ही 3 मेंबर एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड अपॉइंट करो, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जिसको कहते हैं. तो दिस इज द लीगल प्रोसीजर. अगर ये सब नहीं हुआ है तो आप अपने कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास जाके इसका समाधान लेना होगा. थोड़ा बहुत मेहनत करने के अलावा इस पे कोई चारा नहीं है. ओके. मिस्टर साहिल करके है किसी को क्वेश्चन पूछना था. प्लीज मिस्टर साहिल, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और क्वेश्चन पूछिए अपना. थैंक यू हेमंत जी. थैंक यू. वेलकम. वेलकम मिस्टर मनोज. हेलो सर जी, नमस्ते, गुड इवनिंग. नमस्ते. पूछिए सर आपका सवाल. हाँ सर, दरअसल मेरे को प्रॉब्लम था, मतलब एक हमारे सोसाइटी में सर, मतलब रूफ के बारे में, ऊपर टेरिस में सर कई दिनों से हम लोग पतरा या मतलब शेड लगाने की बात चालू है. तो उसके लिए सर मतलब कई दिनों से मैं भी मैं मेरे पापा 5वें माले पे हम लोग रहते हैं, मतलब 5th फ्लोर पे. तो सर मतलब पिछले बार इसमें मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब कि हमारा जो टीवी है बाजू वाले का, 5th फ्लोर पे 5 घर है सर. तो उसमें से सर 50,000 का उसका घर में मतलब टीवी खराब हो गया. एंड एक स्लैब है, मतलब उसके घर पे 3 बच्चे लोग हैं, उसका स्लैब गिर गया, उसके बच्चे को चोट आ गया. लेकिन सर हम लोग ने प्रस्ताव रखा अपने सोसाइटी में कि हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हैं सब घर से कि हम लोग के ऊपर टेरिस पे शेड लग सके. लेकिन सर नीचे वाले सोसाइटी मतलब बोल रहे कि अभी जरूरत नहीं है, 5 माले का काम है बस. तो सर यही जानकारी चाहिए था कि बस 5वें माले का काम है या पूरी सोसाइटी का काम है ये. ओके, मैं जवाब दूं. इसके अलावा और कोई मेंबर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ताकि हम समझें कि आप भी समझ रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो. एनी मेंबर कैन आंसर मिस्टर साहिल सिंह क्वेश्चन प्लीज. It's the responsibility of the society because it's an external thing. It's a top floor और top floor के हिसाब से it's an external problem. The external problem means everybody has to cooperate.
Okay, Mr. Suri also wants to say something. Mr. The question has been answered, I think, क्योंकि वो बार का जो काम रहता है सोसाइटी का, वो सोसाइटी ने ही पूरी प्रॉपर्टी को मेंटेन करना होता है. इंटरनल तो काम वो नहीं मांग रहे, वो बार की दीवार वगैरह जो एक्सटर्नल वॉल्स वगैरह हैं वहां से सीपेज होगी, वो वही बोल रहे हैं. तो द होल सोसाइटी हैज टू bear the cost of repairs and maintain the property. Right, sir. Any other member wants to add anything, please? Aarti madam, आपका experience इस matter में? See, in our society, structural repairs conducted, where the structural audit report clearly stated. I would suggest कि पहले आप structural audit report लेके आइए, and once structural audit report certified BMC engineer का signature होता है, then major repairs can be undertaken, which was undertaken in our society for namesake, and no documents are supplied till date. But I would suggest that आप ही इतनी सख्त पकड़ बना के रखिए कि your repairs get done and your money is utilized for your repairs, which has not happened in my society. My money for the structural major repairs is also gone down the drain. Only slip flats have got repaired. This is the procedure where you have to get the structural audit done, and every society जो 30 years से ऊपर, if I'm not wrong, they have to get structural audit, and जो 30 age के नीचे 5 years का time है. So a structural audit report is very important to pressurize the committee to utilize a contribution give for major repairs and get your flat on the external area repaired. Whereas when internal is there, then it is 50-50 basis, top floor and the floor and below. So even I have had an experience in this matter because I'm still continuing that structural repair. Our society has fished 45 lakh of fund, but structural repairs is done for the society. Case is registered with registrar, BMC Building and Factory Department. And now I'm planning to take a consumer forum help because my money is gone. My house, I have a structural engineer report, some proof कि आपका house खराब condition में है. So the society has to get the work done. Thank you, madam. और कोई member support करना चाहेंगे अपने views से? सत्यनारायण जी, आप कुछ बोलने वाले थे? गौर साहब? नहीं सर, बात तो वही है. मेरा नाम सत्यनारायण गौड़ है. इनका मतलब टॉप फ्लोर है शायद, और टॉप फ्लोर की सीलिंग की रिपेयरिंग अगर हम लोग करनी है, मैं पूरे ध्यान से सुन नहीं पाया, तो अगर टॉप फ्लोर की सीलिंग होती है तो सोसाइटी के हिस्से आती है वो, और एक्सटर्नल तो नो डाउट मतलब वो तो सोसाइटी करनी चाहिए उसको. तो मैं जो आधा समझ पाया तो उसके हिसाब से मेरा उत्तर तो इतना ही है कि सीलिंग है तो भी सोसाइटी को करना है, और आउटर साइड का कुछ रिपेयरिंग है वो भी सोसाइटी करेगी. Yes, sir. ठीक है सर. हाँ, थैंक यू. Anybody, any other members wants to say something? सूरी साहब कुछ बोल रहे हैं? सूरी साहब प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ. अराउंड 10 years ago I was staying in Eversuite apartment, so that is close to Gitanjali apartment if you. तो उसमें क्या हुआ था, I was staying on the top floor and the defaulter was on the ground floor. So the society refused to repair his beam and column on the account that he was not paying the money. And I challenged the society that since I am paying my maintenance bills and everything, the life and security of my people is in danger. It took me nearly 1.5 years. And finally, the BMC swung into action. They hauled the society to the BMC court at Ville Parle. जो जॉब जो सिर्फ 28,000 का था, जो सोसाइटी ने मैनिपुलेट किया था कि ये 1,65,000 कॉस्ट करेगा 10 years ago, तो वो 28,000 में सोसाइटी बीएमसी अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हुआ. और जो सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी थी वो उन्होंने तकरीबन 50,000 रुपया तो लॉयर को दिया, बाकी उन्होंने आगे पीछे केस क्वैश करने के लिए जो पैसे दिए. वो दिन और आज का दिन है, जनरली दे ट्रीट मी कि भाई ये आया है तो इसको छोड़ दो, इसको कुछ बोलो नहीं, इसको ऐसे ही जाने दो. तो जैसे यजदी साहब की प्रॉब्लम है, अगर हम लोग परसिस्टेंटली फॉलो, टाइम लगेगा क्योंकि ये गाड़ी है उसके 2 टायर पंचर है, जो डिप्टी रजिस्ट्रार कह लो या जो सोसाइटी का ऑफिस है इसके 2 टायर पंचर है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर हम परसिस्टेंट रहे तो काम हो जाता है. यस, जैसे एक उदाहरण है, वो लोगों ने सुना होगा, सावित्री और सत्यवान की कहानी. पीछे पढ़ के उसने छोड़ा नहीं, पीछे पड़ी रही, लेकिन अपने पति को वापस लेके आई. आई थिंक एवरीबडी मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट स्टोरी.
आरती मैडम आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाहती थी सूरी जी से, आपको बताऊं जाना करना, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक स्टेप्स. मैं ये मैटर 4 years से फॉलो कर रही हूँ स्ट्रक्चर रिपेयर्स का. सेकंड ऑडिट खड़ा हो गया है, पुराना ऑडिट का तो अकाउंट फंड नहीं दिया गया है. नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ अदर वीडियोस एंड हेमंत का एक कंज्यूमर फोरम का मैंने सुना वेबिनार, उदय वावे जो हमारी सोसाइटी में उन्होंने एक फ्लैट में भी इन्वेस्ट किया है, उनका मैंने एक कंज्यूमर फोरम का सुना है. आप कंज्यूमर फोरम में जाइए, दिस इज माई सजेशन टू लॉट ऑफ पीपल, आप उसकी मास्टरी करिए. एंड आई हर्ड उदय वावेकर जी से जब आप कंज्यूमर फोरम में होंगे और जब आपका ये इसको प्रूव कर सके लाइफ इन डेंजर और स्ट्रक्चर पेयर्स का आपका नहीं है, तो 3 years ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी है. तो सजेशन इज साहिर जी कंज्यूमर फोरम में मास्टरी करिए, बिकॉज मेरा देश महान. सो यहाँ पर रजिस्ट्रार और ऊपर 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 वालों छोड़ दीजिए, आप कंज्यूमर फोरम करिए. This is experience after 6 years of going to BMC and going to registrar, to deputy registrar, to joint registrar, to Pune. Now I'm going to restart with consumer forum for the structure repairs. So my suggestion is this to this forum. Aarti madam, there are members asking for your phone number and email ID. If you wish, please type it on the chat box so that other members can. It is your decision, madam. Can I dictate it, sir? Is it okay? Because you can dictate it as well, but I will also prefer you that you put it on the chat box so that everybody has it. Your voice is crackling actually. I think you are not within a very good network. Sir, I'll just check my network also, because I really don't want my voice to crack. Because this is I don't mean to say that cracking. Network cracking हो रही है, sir. I want my issues. I'll tell you, Hemant ji, I'm very thankful to you because these are such issues. Nobody would like to bring forth issues of community animals and trees, and nobody will understand that how, because of those issues, a member can get harassed to such an extent कि आपके structural repairs भी नहीं करते हैं कमेटी वाले. आपके घर को ही छोड़ दिया कि अच्छा हमारा तो ग्राउंड फ्लोर का घर है, इंजीनियर की रिपोर्ट है कि पिलर्स क्रैक, स्लैब क्रैक्ड है, बीम क्रैक्ड है, बैठे हुए 45 लाख साइफन करके, और मेरे से सिग्नेचर्स लेने के बाद मेरी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट ही चेंज कर दी. इत्तेफाक से मैंने तो क्लिक कर ली थी जब ओरिजिनल रिपोर्ट थी, तो चेंज रिपोर्ट और ओरिजिनल रिपोर्ट का भी एविडेंस है मेरे पास. So जिंदाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जिंदाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग के पास 5-7 मिनट में हम लोग कंक्लूड करेंगे. सर, इसका एक्चुअली मेन जो प्रॉब्लम सोसाइटीज का बड़ा, एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये क्या है, 1998 में रूल पास हो गया था. पहले होते थे 3 साल में इलेक्शन, और ड्यू टू समथिंग दे हैड मेड इट 5 years. पहले 3 साल में इलेक्शन होते थे, तो पहले साल जाता था थैंक यू, दूसरे साल में भूल जाते थे, थर्ड साल में उनको लगता उनकी गद्दी जाएगी, तो दे वर मोस्ट अलर्ट. अभी 5 years का जो टेन्योर हो गया है ना, इट हैज इंक्रीज द एरोगेंस ऑफ द कमिटी मेंबर्स. Totally. मैं काफी यहाँ पे दूसरे भी हाउसिंग मैटर्स की मीटिंग में अटेंड की है कि अगर ये हमारे मतलब वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर प्रेशर करें कि आपने क्यों 5 years किया. आई जस्ट सेड इट वाज बिकॉज ऑफ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्होंने 5 years किया है, क्योंकि बिल्डर्स की लॉबी बहुत मजबूत थी. तो अभी कहने का है कि अगर 3 year हो जाए ना, 90% कमिटी मेंबर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. कमिटी मेंबर्स को हमेशा डर रहता है कि 3 साल बाद शायद उनकी गद्दी खिसक ना जाए. तो ये है कि लेकिन 5-6 साल में दे रियली कंसर्न, और हमारी क्या शॉर्ट मेमोरी है, 2 साल के बाद में भूल जाते हैं कि लास्ट ईयर में फिर सबको रिमाइंडर करते हैं, जब तक वापस उनको इलेक्शन जीत जाते हैं. दिस इज द कोर इशू. दैट्स ऑल. थैंक यू. And secondly, I would like to say one more thing, Hemant ji, through this forum. क्या होता है, आपके गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि ब्रोकर तो कंटेस्ट नहीं करेगा इलेक्शन, लेकिन ब्रोकर क्या करता है, अपनी फैमिली मेंबर्स के, एस्टेट ब्रोकर अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम पे ट्रांसफर कर देता है, उसके फैमिली मेंबर्स इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, एंड यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं. जैसे हमारी सोसाइटी में 50% ऑफ द सोसाइटी इज ऑन रेंट. अब ऐसे में क्या होता है, आप उनसे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लेते हैं, इसका ये प्रमाण है कि दे आर नॉट रिसाइडिंग इन दिस सोसाइटी, बट एजीएम वो अटेंड नहीं करते.
लेकिन जब ब्रोकर को वोट करने का टाइम आता है, उसकी फैमिली मेंबर्स को वोट करने का टाइम आता है, सारे भागे भागे आते हैं। तो ये बायलॉज में भी चेंज की जरूरत है कि जो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस दे रहा है वो उसके राइट्स कर्टेल होने चाहिए, क्योंकि वो तो डिसाइड ही नहीं कर रहा है सोसाइटी में, और वो इनडायरेक्टली दूसरे मेंबर्स जो डिसाइड करते हैं उनके लिए हार्मफुल हो रहा है। सो दीज आर सर्टेन चेंजेस एंड आई पर्सनली फील कि टेन्योर शुड बी ब्रॉट डाउन टू 1 year, बिकॉज कमिटी मेंबर्स आर सपोज टू बी, अगर ऑनररी वर्कर्स है तो लाइक एन एनजीओ अगर 1 साल का टेन्योर होता है and they are made answerable and their powers are limited, definitely changes will come. It is more that the BMC and registrar has to be made to work rather than हम आपस में ना लड़े सोसाइटी के मेंबर्स और कमेटी मेंबर्स मिलके और वो मजे से बैठे रहे और हमारे ऊपर ना हुक्म चलाए। दिस इज माई ओपिनियन। ठीक है, एनी अदर टॉपिक्स? सूर्य साहब कुछ बोलना चाह रहे हो? सर ये रूल क्या है, रियल एस्टेट एजेंट ब्रोकर जो है वो चेयरमैन सेक्रेटरी बन सकता है, नहीं बन सकता है? सर अभी जुलाई 2019 में एमसीएस अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। ओके। अब उसमें एक फनी क्लॉज डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में है लेकिन फिर भी डाल दिया। अब आपको तकलीफ है तो उसको चैलेंज करना। चैलेंज कहाँ करोगे? कोर्ट में करोगे, अपना पैसा खर्चा करोगे। और ये डिपार्टमेंट को भी पता है कि अब मेरी और आपकी हैसियत और औकात कितनी है। वो तो सरकार है, उसके पास तो अनलिमिटेड पैसा है, वो डाल देंगे और फिर अपना लड़ते रहो। अब वो क्लॉज क्या डाल दिया कि अगर आप वेस्टेड इंटरेस्ट पर्सन हो, वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हो तो आप मैनेजिंग कमेटी मेंबर नहीं बन सकते। ऐसा कल एक और क्लॉज आ जाएगा सर जी कि आप डिवोर्सी हो तो मैनेजिंग कमेटी मेंबर नहीं आ पाओगे। जैसे अभी पता है ना, पिछले 2019 के पहले तक ये क्लॉज था कि भाई 2 बच्चे से ज्यादा है तो मैनेजिंग कमेटी मेंबर नहीं बनता। हाँ, लेकिन आप देश के नेता बन सकते हो। आप एजुकेटेड नहीं हो, आप देश के नेता भी बन सकते हो, आप मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स भी बन सकते हो, लेकिन हमको एजुकेटेड होना पड़ेगा। पढ़े लिखे करेंगे इनकी जी हजूरी और नॉन पढ़े लिखे करेंगे हम पे राज। एग्जैक्टली। तो ये सब क्लॉजेस कैसे जनरेट हो जाते हैं? आरती जी एक मैं बताना चाहता हूँ, आपने जो कहा कि मैनेजमेंट कमेटी में वो नहीं आ सकते जिन्होंने रेंट किया हुआ है वो फ्लैट, वो ऑलरेडी है वो प्रावधान। अगर आपने फ्लैट रेंट पे डाला हुआ है तो आप मैनेजमेंट कमेटी में नहीं खड़े हो सकते। मैं ये कह रही थी, जब आप किसी से नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लेते हैं, इट्स अ प्रमाण कि वो आपकी सोसाइटी में नहीं रहते हैं, उनके प्रॉपर्टी का राइट बना कमेटी में नहीं आ सकते। आप चैलेंज कर सकते हो। वोटिंग के वक्त आ जाते हैं और वो एस्टेट एजेंट की फैमिली को वोट करके चले जाते हैं। ये मैं आपसे कह रही हूँ। होल्ड ऑन। एस्टेट एजेंट नहीं आ सकता क्योंकि एस्टेट एजेंट्स क्या करते हैं, जो भी बाइंग सेलिंग होता है ना उसमें वो लोग अपनी कमीशन रखते हैं और जानबूझ के प्रॉपर्टीज को डिवैल्यू करते हैं। एग्जैक्टली। तो वो इन सम केसेस दैट इज आल्सो पॉजिटिव थिंग। सो हेमंत जी वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है अभी के रूल के हिसाब से? मिस्टर संतोष और मिस्टर सूर्य आप अपने आप को म्यूट कर ले 2 मिनट के लिए। मिस्टर सत्यनारायण वुड लाइक टू क्लैरिफाई ऑन दिस मैटर। मिस्टर सत्यनारायण प्लीज गो अहेड। नहीं सर, जिसने रेंट पे दिया है वो वेरी वेल कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई रूल मैंने तो नहीं पढ़ा है वैसे। करेक्ट है सर। आप ज्यादा जानते हो सेक्शन वाइज कि वो कोई रूल नहीं है। हाँ, जिस किसी का भी स्टेट एजेंट का बिजनेस है वो प्रूव किया जा सकता है तो ठीक है, वो क्लॉज जरूर है, लेकिन रेंट आउट करने के ऊपर तो कोई क्लॉज है नहीं। यस सर, आप ठीक बोल रहे हैं। इस समय ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि आपने फ्लैट अपना भाड़े पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, लीज पे दे दिया तो आप मेंबर नहीं रहते हो, आप कॉन्टेस्ट तो कर सकते हो। लेकिन ये जुलाई 2019 के अमेंडमेंट में सिर्फ एक इतना ही छोटा सा क्लॉज डाल दिया है कि अगर आप उस चीज का बिजनेस कर रहे हो तो आपको वेस्टेड इंटरेस्ट का कैटेगरी बना दिया हुआ है, इसीलिए आप मैनेजिंग कमिटी में नहीं आ सकोगे। लेकिन भाड़े पे दे सकोगे नहीं दे सकोगे ये क्लॉज नहीं है। तो संतोष जी के साथ में मेरा इस चीज से समाधान नहीं, क्योंकि कानून में इस समय तक अभी तक ये पर्टिकुलर क्लॉज नहीं डाला हुआ है। लेकिन there is a clause of active members ना, please highlight on that. What is that clause of active and non-active members and their rights? Because when जुलाई 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ उसमें जो कंपोनेंट था एक्टिव मेंबर का, वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक्टिव मेंबर का कंसेप्ट निकाल दिया।
अच्छा, तो डिलीट कर दिया हुआ है। तो अब आप एक्टिव मेंबर हो या नहीं हो, आप सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी में भी आ सकते हो। मन मर्जी आए तो एजीएम अटेंड करो, नहीं अटेंड करना तो सालों साल अटेंड मत करो, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी के चैप्टर, बाकी सोसाइटीज में एक एक्टिव मेंबर है, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज है, पथ ब्रीडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, प्रीमिसेस सोसाइटीज है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसमें ये लागू है। सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी में एक्टिव और नॉन एक्टिव मेंबर का परसेप्शन निकाल दिया। संतोष जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं जस्ट वो क्लॉज ढूंढ रहा हूँ, आपको 2 मिनट में बताता हूँ। यस सर। मिस्टर सूरी पढ़ा हुआ है कि अगर आपने रेंट पे डाला हुआ है तो आप नहीं आ सकते। मैं 2 मिनट दीजिए मुझे। यस सर, आई विल वेट। मिस्टर सूरी प्लीज। हमारे केस में जो सेक्रेटरी है वो रियल एस्टेट ब्रोकर है और ही इज रिफ्यूजिंग ऑन दैट ग्राउंड कि मैं इस बिल्डिंग में तो कोई लेन देन नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा इस बिल्डिंग में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो डज इट होल्ड वाटर? हालांकि वो स्लाइली करता है, दूसरे ब्रोकर को आगे करके काम करता है। कानून में ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। अगर आपका सेक्रेटरी ब्रोकर है, हाँ, लेकिन उसके खुद के सोसाइटी में वो ब्रोकरेज कर रहा है, हाँ, लेकिन सूरी साहब के नाम पे कर रहा है या आरती मैडम के नाम पे कर रहा है या संतोष जी के नाम पे कर रहा है, तो वो परफेक्टली कर सकता है, क्योंकि कोर्ट जाने पे वो जो टेनेंट है या अगर टेनेंट कोई फाइल्स देता है तो उसके अंदर वो ब्रोकर का तो नाम नहीं होगा, उसमें सेक्रेटरी का नाम नहीं होगा, उसका और किसी का नाम होगा। वो अनलेस एंड अनटिल वो टेनेंट अपने एफिडेविट में ये बोले कि नहीं सब ब्रोकरेज तो मैंने इस सेक्रेटरी को दिया हुआ एंड ही वाज द पर्सन, इतना बड़ा कदम कोई लेने से कतराएगा? यूजुअली नहीं होता है सर, नहीं करते। मेरा इसका मतलब तो सर वो बैठा ही रहेगा पोस्ट में। हाँ जी, वही हो रहा है। नथिंग लीगली रॉन्ग, हम लोग कानून की भाषा बात कर रहे हैं इस समय। सूरी जी, क्योंकि अगर वो समझो ब्रोकर नहीं भी है, जैसे दूसरा पहलू ले लो इसके अंदर, अगर वो ब्रोकर नहीं भी है लेकिन आरती मैडम को ना अपना गुस्सा निकालना, बोले नहीं ये ब्रोकर है, इसने ये किया, इसको हटाओ, तब क्या होता है? देयर हैज टू बी सम एविडेंस टू इट। वही बात आती है ना सर, एविडेंस लेमैन कहाँ से प्रोड्यूस करे? एग्जैक्टली, लेमैन क्या करे यही तो जानना है सूरी जी। और मैंने तो समझा लेमैन सिर्फ कंज्यूमर लॉयर्स को पकड़े, कंज्यूमर फोरम में जाए और सब लेमैन इन सबको ले ऑफ करवाए। Seriously, I want to start that. It's Corona that has got stuck up. I have made all the preparations and I want suggestions of any consumer lawyers there. I really need the guidance this time because what I have gone through, I don't want others to go through. Okay, now we will conclude. Mr. Suri, can you mute yourself? संतोष जी, फाइनली आपका सुन के फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं। मिस्टर संतोष, यू वांट टू से समथिंग? सर 2 मिनट नहीं, I'll need some time. आप या नेक्स्ट मीटिंग में बता दूंगा मैं। नेक्स्ट मीटिंग में बात कर सकते हैं। ओके, बिफोर वी कंक्लूड, I would like all the members to consider giving your own experiences. जैसे कि आरती मैडम का एक्सपीरियंस हुआ, जैसे यजदी साहब का एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे और भी कोई मेंबर है जिनको अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ उनके साथ में हुआ है, तो वो आई इनवाइट यू, मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आपसे सेपरेटली कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं। निमिष जी, आप कुछ बोल रहे हैं? जी, मेरा प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ा है, तो वो अगर हम लोग डिस्कस करें तो अच्छा रहेगा नेक्स्ट टाइम। ओके, स्पीकर का टाइम 30 मिनट्स का रहेगा, आप 30 मिनट्स में अपना बना लीजिए, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम मीन्स हम 10 इश्यू नहीं डिस्कस कर पाएंगे। एक ही इशू है, एक या 2 इश्यू डिस्कस कर लीजिए। दादागिरी है उसमें, सारे प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम, आप मुझे फोन पे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। जब भी नेक्स्ट वेबिनार होगा हम उसे स्लॉट बना के उसमें कोशिश करेंगे फिट करने की। जी जी। एनी अदर मेंबर्स बिफोर वी कंक्लूड? आई एम श्योर कि मेरा जो प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट 75% सारी सोसाइटी में होगा। यस सर। और यशदी जी की तरह मैं भी फाइट कर रहा हूँ, अकेला ही कर रहा हूँ, खुद के पैसे जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, मगर कुछ मिल नहीं रहा है। जैसे आरती जी ने कहा, आरती जी की तरह भी सेम है। सर यशदी जी फाइट कर रहे हैं, कुछ मिलने के लिए फाइट नहीं कर रहे, एक प्रिंसिपल मैं भी वही कर रहा हूँ। हाँ, मेरा भी एक प्रिंसिपल है कि मुझे फाइट करना है और मुझे जस्टिस लेकर आना है। दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड इट इज हाईली अप्रिशिएटेड। मेरा वही है कि इनकी दादागिरी बंद होनी चाहिए और जो फैक्ट है उसको सामने लाओ, चोरी चकारी बंद करो। यस सर।
So I will repeat once again. Any member wanting to participate, Same here. please. Same here. Yes, Hemant ji, I found it. Yes, sir. Bylaw number 117F. Bylaw number 117F. It says he has, without previous permission and writing, has sublet his flat or part thereof, or given it on leave and license or caretaker basis, or has parted with his possession in any other manner, or has sold his shares and interest in the society. Okay. Now there is a very small thing which I want to mention, that he has, without previous permission. Normally, when you give a flat on leave and license, you don't have to take the society's permission. It is very clear that you have to give an intimation to the society, and after the registration of the leave and license agreement, you have to just give your police verification and the rent agreement to the society and take an acknowledgement. Correct. Right. So if you have given the flat on leave and license, so normally according to this bylaw number 117F, you are not eligible. You can check it out, no problem. Take your sweet time. And जो आपने prohibition against the estate agent being in the committee, उसका ऐसा है, no officer of the society shall have interest directly or indirectly, otherwise than such an officer. अभी उसमें क्या होता है, whenever one person for registration of the deed, whether sale or leave and license, normally the estate agent normally signs as a witness. So if you get a copy of the leave and license agreement or the sale deed and see his name and the witness, then you can definitely challenge it. So this is a tip. Normally वो उनको ध्यान में नहीं आता है कि ये यहाँ तक पहुँचेंगे. But if you get a copy, then you have done it. Yes, that is what I have just suggested. कि अगर वो भाड़ुत्री, रेंटर, लीजी अगर बोलता है कि ठीक है भाई मैंने सेक्रेटरी को ब्रोकरेज दिया हुआ और ये उसका चेक का फोटोकॉपी, there is some evidence, then only it is implementable. Okay, दोस्तों, can we conclude this session for today? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then. Before I conclude, I will want to give a small 1-minute lecture. कई मेंबरों ने ये बोला है कि करप्शन होता रहता है, पैसे खिलाए बगैर काम नहीं होगा, और ये तो सोसाइटी में नॉर्मल है, हमको सहन करना पड़ता है, वगैरह वगैरह. ये सारी बातें फिलोसॉफिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर ऐसा कुछ होता तो यजदी साहब ने जो अभी तक इतना झेला है और जो किया हुआ है और जो अचीव किया है, आपने ध्यान से सुना यजदी साहब ने क्या बोला. अब जाके मेरी सोसाइटी ने रिफ्यूज एरिया से ये कुर्सी हटा दिया, ये हटा दिया, मतलब काम शुरू हो गया. उनका जो ऑब्जेक्टिव था जस्टिस का, वो शुरू हुआ. उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मेरा पैसा खर्चा हो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है. कर रहे हैं, लेकिन करने वाला आदमी है जो मेहनत करेगा, काम होता है. ही हैज अचीव्ड समथिंग. सो हमें नेगेटिव सोचने की जगह में कि नहीं करप्शन के बगैर काम नहीं होता है. होता है सर. वो ये आप सोचोगे कि मेरा पॉलिटिशियन बहुत बड़ा है. आपको याद होगा पी चिदम्बरम जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके कई सालों तक, वो भी जेल में रह के आए. अगर इतना ही पावरफुल आदमी होता है, महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, इंडिया में भी देख लीजिए, कई पॉलिटिशियंस को जेल में डाला हुआ है. दे आर हाईली पावरफुल पॉलिटिशियन, बट कानून के सामने नहीं टिक सकते हैं. वक्त लगता है लेकिन हो जाता है काम. तो माय सजेशन इज कि पीछे पड़े रहो, आपका काम होगा. तकलीफ होगी लेकिन आपका काम होगा. उस तकलीफ के बाद में लोग आपके सोसाइटी में आपको जानने लगेंगे और एक इनवॉलेंटरी साइलेंट रिस्पेक्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा. यजदी साहब जब भी बिल्डिंग के नीचे उतरेंगे, लोग विल नो, अरे ये वही आदमी है जिसने ऐसा किया, लेकिन मन के पीछे he has done a very good job, हमारे लिए किया उसने. That way. Mr. Yazdi, we will close with your final words. सर, आरती मैडम का फोन नंबर नहीं मिला, if you don't mind. आरती मैडम आपने चैट बॉक्स में डाला हुआ है क्या? नहीं, चैट बॉक्स 98 Okay. 692 Okay. 54 Sorry. 992. नहीं, बीच में मिस हुआ. Where is the chat box? I'm just trying to find the chat box. 98692. हाँ. Yeah, 98692. Okay. 54 Okay. 992. Okay.
I've also put the number of Aarti madam on the chat box. ठीक है. People can coordinate with each other. That will be the best. Help as much as possible each other without having to bother कि वो उसका कितना पहचान है, वो करप्शन के बगैर काम नहीं होगा, मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, वैसा कुछ भी नहीं है. लाइफ में आप अपने मैनेजिंग कमेटी को संचप करके तरह काफी घुमा सकते हो. वन फाइन डे हम एक ऐसा लेक्चर ऑर्गेनाइज करेंगे, 2 घंटे का होगा, जिसमें यही सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग योर मैनेजिंग कमेटी वर्क नॉट एज पर योर विशेस but as per the wishes of the law. And there will be many people who will be supporting this thing, who will be lecturing this, etc. So for today's session, Mr. Yazdi, please, your last words for today's webinar, please. Mr. Yazdi. Yes, sir. Yes, Mr. Hemant, sir. Thank you. I would like to thank the forum for inviting me, and especially Mr. Hemant ji and the members to listening me out. And let's see in the next seminar, after a month or so, I will give you a good news that the refugee area has been demolished. Thank you. I'm already getting an intuition that it will be your work will be done. Thank you, everybody. And now we will conclude this session. Good night to everybody. Thank you, sir.